ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاکستان کا ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج۔ پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد ذرائع موجود ہونے کے باوجود غیر قانونی عمل ہوا۔ پاکستان کی جانب سے تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے دفتر میں احتجاج ریکارڈ کروا دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ حملے کے نتائج کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر عائد ہوگی۔ نواز شریف کا 18 جنوری سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف معاشی روڈ میپ پر مشتمل انتخابی بیانیہ لے کر میدان میں اتریں گے۔ ذرائع مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کا 18 جنوری سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نواز شریف حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ نواز شریف معاشی روڈ میپ پر مشتمل انتخابی بیانیہ لے کر میدان میں اتریں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے لاہور میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ کہتی ہیں کہ 8 فروری کو شیر دھاڑے گا، گھسپیٹیوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ عوام سے وعدہ کرتی ہوں کہ شیر کو فتح دلوائیں اور انشاءاللہ خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور میں اپنے صوبائی حلقہ پی پی 159 پہنچی تو کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا۔ جگہ جگہ گل پاشی کی گئی۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کچھ عرصے سے لاہور میں گھس بیٹھیے آ گئے، پنجاب اور لاہور 5 سال لاوارث رہا۔ 8 فروری کو ان گھس بیٹھیوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ پچھلے 5 سال میں جب گھس بیٹھیے لاہور میں گھس کر قبضہ کر لیا، ترقی کا پہیہ آگے نہیں بڑھا۔ یہ میٹرو بس اورنج لائن جس کو ثاقب نثار 1.5 سال تک روک کر بیٹھا رہا، کوئی ترقی مسلم لیگ نون کے جانے کے بعد نہیں ہوئی۔ لاہور ایسے ہو گیا جیسے لاوارث ہوتا ہے، لاہور میں کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں، ہم عوام کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے، اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ آپ یہاں سے شیر کو جتاؤ، نواز شریف کو جتاؤ، مریم نواز کو جتاؤ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس حلقے کی بھی قسمت بدلیں گے، لاہور کی بھی قسمت بدلیں گے، پنجاب کی قسمت بھی بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بھی بدلیں گے۔ اس موقع پر پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز اور دیگر مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو غربت اور مہنگائی میں کمی ہوگی، ہمارے منصوبوں سے بے روزگاری کی شرح میں کمی آئے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بچوں کی مفت تعلیم، غریبوں کے مالکانہ حقوق پر مکان بنا کر دیں گے۔ پی ایس ڈی پی کے اسٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سولر انرجی کے ذریعے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کریں گے، گھر لینا بہت مشکل ہو چکا ہے، نوجوانوں کو قرض فراہم کریں گے، وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت پروگرام میں بلا سود قرض دیں گے۔ We will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys of school-going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. We will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class.
PTI के वोटर और ओहदेदार इख्तलाफात में न पड़ें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का यह कहना था कि PTI के वोटर अपने उम्मीदवारों की पहचान करें, उम्मीदवार मुत्तहिद रहें। 8 फरवरी को फतह आपकी होगी। कोशिश करें कि आज तमाम लिस्टें फाइनल कर लें। PTI के उम्मीदवारों की लिस्टें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है। उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाअल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुत्तहिद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसिफा भुट्टो भी बिलावल के लिए वोट मांगने के लिए सियासी मैदान में निकल पड़ी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज़ बने। मज़ीद तफसीलात कराची से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट में देखिए। भाई को वजीर आजम बनाने का मिशन। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बिलावल के लिए इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इब्राहिम हैदरी लांडी मलीर का दौरा किया। कारकुनों ने आसिफा भुट्टो जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर पर मनोअन अमल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक आवाम दोस्त मंशूर दिया है, एक गरीब दोस्त मंशूर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सेहत कार्ड मिले तो बिलावल भुट्टो को कामयाब कराएं। बिलावल भुट्टो ने आवाम दोस्त मंशूर दिया है। आपने 8 फरवरी को वोट तीर को देना है। आसिफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची के दीगर अजला का भी दौरा करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और DROज़ को हिदायत की है कि पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान तब्दील न किया जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी आयद, बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। अब निशान बदलने से इज्तनाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन की आरओज़ और DROज़ को हदायत जारी। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक DROज़ और ROज़ को हदायत की गई है कि वो इस मरहले में इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। अगर कोई तब्दीली लाजिम दरकार हो तो कमीशन से पेश की इजाजत ली जाए। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन न हो सके। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ फोरम से अलाट शुदा इंतखाबी निशानात तब्दील किए जाने के बायस इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि अगर इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इलाट शुदा इंतखाबी निशानात की तब्दीली, इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया। निशानात की तब्दीली पर इंतखाबात में इल्तिवा के खदशात, मुतलका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने का भी अंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर की छपाई का आर्डर दे चुका है। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम भी शुरू हो गया है। निशानात बदलने का सिलसिला जारी रहा तो बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए वक्त महदूद है। खुसूसी कागज भी जाया हो जाएगा। तर्जुमान ने मजीद बताया कि 2018 के इंतखाबात में 800 टन कागज बैलेट पेपर की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ था। इस बार 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है। 2018 में 220 मिलियन बैलेट पेपर छपवाए गए थे। इस बार 260 मिलियन बैलेट पेपर छपवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग कर रहा है कि इस सूरत-ए-हाल से कैसे नबर्द आज़मा हुआ जाए। साबिक वज़ीर शेख रशीद अहमद की 14 में से 13 मुकदमात में ज़मानत मंजूर, एक में खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम और PTI के 15 कारकुनान की अबूरी ज़मानतें भी मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। शेख रशीद अहमद की 13 मुकदमात में जमानत मंजूर। साबिक वजीर दाखिला 14वें मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार। शेख रशीद अहमद को थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने 9 मई के वाकयात में शेख रशीद की मुख्तलिफ थानों में दर्ज 13 मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी।
अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों समेत 15 कारकुनों की जमानतों पर फैसला भी सुनाया। अदालत ने साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी और PTI कारकुनों की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शेख रशीद अहमद को आज अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए 6 रुकनी GIT तश्कील दे दी। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मामले की तहकीकात और कार्रवाई के लिए 6 रुकनी GIT की तश्कील। GIT में FIA के एडिशनल DG साइबर क्राइम, IB और ISI के नुमाइंदे शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTA का नुमाइंदा भी शामिल होगा। GIT सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करेगी और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की शिनाख्त करके उन्हें कानून के कटहरे मिलाएगी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 14 रोज में वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी और मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में चालान भी पेश करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ अदलिया पर एतमाद नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ मांगते हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का लतीफ़ खोसा से दिलचस्प मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान PTI वकील ने चीफ जस्टिस से बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में 6 गवाहों के बयानात कलमबंद, तोशाखाना केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की समाअत। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। साइफर केस और तोशाखाना केस में गवाहान के बयानात कलमबंद। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। समाअत में वक्फे के दौरान तबीयत नासाज होने पर बुशरा बीबी अदालत से चली गई। अदालत ने बगैर इत्तला बुशरा बीबी के वापस जाने पर बरहमी का इजहार किया और जेल हुक्काम से बुशरा बीबी की आमद और रवानगी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जेल हुक्काम ने बताया कि बुशरा बीबी 11:13 पर आई और 1:42 पर खुद चलकर वापस गईं। वकील सफाई उस्मान गुल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त जेर समाअत है, हाई कोर्ट के अहकामात तक फर्द जुर्म आयद न की जाए। अदालत ने चार्जशीट पढ़ी और मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वकील उस्मान गुल ने कहा कि एक मुल्जिम की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। बानी PTI ने कहा कि कानूनी दस्तावेजात का इल्म नहीं, वकील देख कर समझाएगा। अदालत ने गवाहान को तलब करते हुए समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया गया। अदालत ने इस्तिगासा के मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए, जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 2 गवाहान मोहसिन और इरफान रफाकत के बयान कलमबंद कर लिए। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने ईरान के इराक में मिसाइल हमले की मजम्मत की है। उन्होंने ईरानी हमले को बेवकूफ़ी करार दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के दफ्तर खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने इराकी शहर राबिल में ईरानी पासदारान इनकलाब के हमले की मजम्मत की है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से अमरीका का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अमरीका इराक के इस्तेहकाम को कमज़ोर करने वाले ईरानी हमलों की मजम्मत करता है। अमरीका इराक की हुकूमत और कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है।